ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ NRIs ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਰਹੇ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 55 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 100 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ 158% ਹੋਇਆ। ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 4-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਟੋਟਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਓਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲ ਵੱਧ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਵਾਕਈ ਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ, ਜੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਜਾ ਰੁੱਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3,54,796 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4,03,116 150 ਜਾਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਵਰੇਜ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। 16% ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਰੇਟ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਸਪਾਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਾਕਟਰ MP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਂਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ अर्ली मॉर्निंग है, तुसी टाइम कढ़ा, बड़े मशगूल हैं ਤੁਹਾਡੇ, और आपने जो वादा किया था कि आप टाइम पर होंगे, आप थे। कुछ टेक्निकल इशू आ गए, 10 मिनट लेट चल रहा है प्रोग्राम, कोई बात नहीं सर। सबसे ज़्यादा ये बताइए कि अगर आप रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान या फिर साउथ अफ्रीका, हम साउथ अफ्रीका को एक तरफ छोड़ देते हैं, हम अपनी कंट्री की बात करते हैं। क्या कारण है सर? रोड्स तो अच्छी हो रही हैं पीछे, अब क्या कारण है कि 16% डेथ्स में भी हो रहा है इजाफा और टोटल रोड एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं? सर मैं शुरुआत करूंगा। साइरस मिस्त्री की डेथ हुई, फॉर्मर चीफ डॉक्टर संस्कार, उनकी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड और 2 साथी और उनकी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, मर्सिडीज गाड़ी थी, और एक्सीडेंट डिवाइडर से टकरा के चारों मर गए। उसमें 2 जो पीछे वाले मरे, साइरस मिस्त्री और उनका साथी, वो सीट बेल्ट नहीं लगे हुए थे, रियर सीट वालों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखे थे। इंडिया में रोड्स कंडीशन बड़ी अच्छी हुई है, लोग मोबिलिटी बढ़ी है, जैसे आपने बताया कि रोड्स कितने पहले से कितनी % बढ़ गई है। मैं कुछ थोड़ी सी बताना चाहूंगा आपको कि जो टोटल रोड एक्सीडेंट्स होते हैं 45% 2 व्हीलर्स के हैं और 60% ओवर स्पीडिंग के हैं। कार की बात करें और बात करें, और इंडिया की जहां तक बात करें तो वी आर नंबर 1 सीवियरिटी की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया में हम 1 नंबर पे हैं।
अगर अपन कंपैरिजन करें तो इंडिया में 4,80,652 एक्सीडेंट्स में डेथ जो हुई है वो 1,51,000 देखिए। और कंपेयर विद जापान, वहां पे 5 लाख एक्सीडेंट्स में और डेथ हुई है 4,700। सी द डिफरेंस, 1,51,000 एंड 5,000 एक्सीडेंट्स इक्वल है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। और मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाहूंगा बीच में ही मैं कि इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों की बात करें, अच्छी बात है, हमें करनी भी चाहिए, पर जो एक्सीडेंट्स जिसमें हमारा यूज जा रहा है, जो हमारी इकोनॉमी को इतना इफेक्ट कर रहा है, उस पर बहुत कम बातें हो पा रही है। तो ये जो चीजें हैं उसको एड्रेस करने वाली है कि इंडिया में इतनी डेथ सीवियरिटी इतनी ज्यादा है कि डेथ जो आंकड़ा है, हम वी आर ऑन द टॉप एंड इट्स शेमफुल मैटर फॉर अस, फॉर इंडिया। ये हम इस तरह की इन चीजों पे बात ही नहीं करी जा रही है। गाड़ियों की जहां तक आपने बात करी, क्वालिटी व्हीकल्स अभी भी है, नहीं है। सीट बेल्ट तो अब कंपलसरी किया है, रियर सीट बेल्ट कोई अभी कंपलसरी नहीं है। गाड़ियां जो है उसको क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो हम कहीं ठहरते ही नहीं है। कुछ एक व्हीकल्स जो बाहर से कोई मर्सिडीज या कोई और है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, दूसरे आगे कर रहे हैं, वो भी दे आर नॉट एट पार फॉर सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये कुछ एक पॉइंट्स जो मेरे थे। दूसरे जो जनवरी में यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे आंकड़ा बढ़ जाता है एक्सीडेंट्स का, बिकॉज ऑफ फॉग। जस्ट आपने जिस थोड़ी देर पहले बताया, और ये शादियों का सीजन है, मैं देखता हूँ बिल्कुल रोड पे है मेरा घर, तो इतनी मोबिलिटी, इतने लोग जा रहे हैं, उतनी ओवर स्पीडिंग हो रही है, ड्रंकन ड्राइविंग। और एक नया ट्रेंड सर एक और आ रहा है कि ओवर स्पीड के साथ, ड्रंकन के साथ साथ जो डिस्ट्रैक्शन, ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन क्या है, मोबाइल, ये इतना परसेंटेज बढ़ती जा रही है कि आप ड्राइवर इफ ही इज टॉकिंग ऑन सेल फोन तो डिस्ट्रैक्ट होएगा वो। ये भी एक मेजर कारण है एक्सीडेंट्स का इंडिया में। डॉक्टर साहब, जी 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 जी, आपने अभी ये बताया कि मोबाइल और दूसरा जो ड्रंक एंड ड्राइव है, उसमें मैं बाद में आता हूँ। मैंने एक रिसेंटली जब मैं इंडिया गया था तो एक देखा था कि बंदा मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है, उसके पीछे उसका बच्चा बैठा था, उसके पीछे उसकी वाइफ होगी, एक लेडीज़ बैठी थी। वो बंदा एक हाथ से मोटरसाइकिल और एक हाथ से जो है मोबाइल। सो मैंने टोटल कैलकुलेशन की कि ज़िंदगी और मौत के बीच में सिर्फ इतना सा फासला है बस, और कुछ नहीं। वो खुद सुसाइड रोड पे चला हुआ है। अगर कुछ भी आ जाए आगे, कुछ भी नहीं है। ये मैंडेट हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार जैसे सख्ती पर उतरे तो ये काम की 3 सवारी नहीं लेके अगर आप मोटरसाइकिल, यहाँ तो कार में भी आप नहीं कर सकते, यहाँ वो ब्लूटूथ होना चाहिए, उस पर बात कर सकते हैं, वरना कार में बैठे स्टीयरिंग से एक साथ से तो वो जुर्माना लगता है। वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उस पर बाद पे आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि जो डाटा निकला है 150 से 152 डेथ्स इंडिया में रोज रोड एक्सीडेंट पे हो रही हैं। सर ये बढ़ रही है, कभी कम क्यों नहीं होता? मेरा ये कारण है, बढ़ रही है, मतलब 152 से कभी 145 140 क्यों नहीं होती? सर हमारी डेथ पर आवर 47 एक्सीडेंट है, 18 डेथ पर आवर है सर जी। 422 डेथ्स पर डे है सर हमारी, 115 है सर इंडिया में 422 डेथ्स पर डे। हम वो डाटा ले लेते हैं, आप वाला ले लेते हैं। कभी ये हुआ है कि कभी उससे कम हुए हैं एवरेज? मतलब आज इतनी डेथ हो गई है, 400 हो गई, 300 कुछ भी ले लिए, कभी ऐसा हुआ कि उससे आधी नेक्स्ट डे हुई? कम क्यों नहीं हो रही, ये बताइए आप। 2020 में एक्सीडेंट्स कुछ कम हुए थे 14% बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन। अदरवाइज हाँ जी, वो तो इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैं आपको कुछ और बात बताऊं, जैसे आपने सख्ती की बात करी, ट्रैफिक पुलिस की है, पुलिस की सख्ती है, तो मेरे यहाँ से देखता हूँ रोज कि ट्रक और ट्रैक्टर्स उसमें तूड़ी और पराली भर भर के जाते हैं कि वो पूरी रोड को 10 मीटर रोड को पूरी को ब्लॉक करते हैं वो, और जाम लगता है, जैम के साथ साथ एक्सीडेंट्स होते हैं। और आपने बताया कि वो तो आपने 3 लोगों को देखा, 5 लोग 6 लोग बाइक पे और बात करते हुए, और सब कुछ इग्नोर किया जा रहा है, ना उसको परवाह है
ना ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी को परवाह है कि ये क्या होने वाला है। हम्म। और जो 45% एक्सीडेंट में मैंने बताया बाइक में, और उसमें सर मोर देन 60% यूथ जा रहा है, 20 साल 22 साल 25 साल ये। तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इससे पहले पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को दे से वेरी प्राउडली कि हमारा बच्चा तो बाइक चला लेता है और दादी को लेके गया है। और मेरा एक दोस्त का बेटा ऐसे जा रहा था बाइक पे और दादी को बिठाया हुआ था, 14 साल का लड़का, एंड डाइड ऑन द स्पॉट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सेमिनार्स है, बात करना है, हमारा डॉक्टर्स का भी रोल होना चाहिए। पॉलिटिशियन के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप जैसे ये प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखेंगे तो ये समझें कि हम एकदम से वी आर जस्ट इनवाइटिंग, हम आमंत्रण दे रहे हैं, एवरी टाइम वी आर इनवाइटिंग कि हम हमारी मौत हो। तो ये बहुत भयावह है सर। डॉक्टर साहब, आपने बात की थी नशे की। सरकार सख्त क्यों नहीं हो रही इस पे? नशा, हम छोटे बच्चों की ड्राइविंग और उस पर नशा करके जो ड्राइव कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले आंध्रा में हुआ कि 3 और 4 गाड़ियां भिड़ी हैं, सभी के सभी नशे में थे, और शाम के 4-5 बजे का, ये भी नहीं कि रात का टाइम था। बात तो फिर वहीं आ जाती है कि हम जब कोरोना में थे तो सरकार इतनी सख्ती कर रही थी कि कोई बाहर ना निकले। अब इसमें भी है कि जो ड्रंक एंड ड्राइव या और किसी तरह का नशा करके जो गाड़ी लेके निकलता है, अगर पकड़ा गया तो कम से कम उसको, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो, उसकी गाड़ी जो है वो वहाँ से ले ली जाए, और उसको भी कम से कम जमानत उसकी 4-6 महीने ना हो, जो जैसे यहाँ होता है। आपको क्या लगता है? मतलब सख्ती नहीं हो रही है, आप ये कह रहे हैं? पता जी जी जी। देखिए, ये जो नशे की बात करी ना आपने, डे टाइम में भी शादियां होती है और नाइट में भी होती है, और सारे मैं कह रहा हूँ मोर देन 60-70% persons those who are coming to attend that marriage, they drunken, ड्राइवर भी नहीं लेके जाएंगे खुद, और सख्ती, एक्सीडेंट कोई हो जाता है तो पुलिस एंड पॉलिटिशियन वो ये कोशिश करते हैं कि ये बेचारा जो था उसको तो किसी तरीके से निकालो, चाहे 4 या 5 की डेथ हो गई हो, इनको किसी तरह से निकालो, किसी और का नाम देते हैं। कुछ होना तो है नहीं, एक्सीडेंट्स में कोई और दूसरा मर गया आपकी टक्कर से, कुछ नहीं होगा, ड्राइवर चेंज कर देंगे। हर कोई, एवरी अथॉरिटी बस लगी रहती है किसी तरीके से इनको निकाला जाए, ये ज्यादा हाईलाइट। तो कहाँ सख्ती, बिल्कुल ही मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही हमारी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हम इस पे कानून, ये बैन लगाएं। और देखिए गुरलाल जी, ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं। जी जी जी। रैली जो हो रही है तो उसमें हजारों व्हीकल्स जा रहे हैं, और स्पीडिंग और सब कुछ वो दे प्रोवाइड एवरीथिंग, नशा बल्कि वो उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे पोजीशन है। तो ये जो दे आर प्रमोटिंग दिस थिंग, कहाँ एक्शन की बात हो रही है? आप थोड़ा एग्जेजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, आप तो देखते हैं यहाँ पे इंडिया में आके बात करते हैं, इसको वी नीड टू एड्रेस एवरीथिंग एट एवरी लेवल। अभी आपने बात की इच्छा शक्ति, विल पावर, वो उसके लिए वर्कशॉप या क्लासेस ज़रूरी है सर। ब्रेक से जाने से पहले मैं ये एक बात, आप जो कलेक्टर लेवल पे या तहसीलदार लेवल पे एक सिटी में ये तो कर सकते हैं कि जो उम्र है लाइसेंस की 16 या 18 साल जो भी इंडिया में होगी, लेकिन मैंने देखा है स्कूटी छोटे छोटे बच्चियां लेके घूम रहे हैं, उस पर तो रोक लगा दी जा सकती है कि नहीं? बिल्कुल लगाई जा सकती है, बल्कि स्कूटी वितरण हो रहे हैं सर। आप पॉलिटिकल एंगल से देखिए कि 14-15 साल की 10th पास लड़की है, उसको, लड़की लड़का जो भी है, उसको स्कूटी दी जा रही है हम वितरण कर, कहा ना तो उसको लाइसेंस मिल सकता है बिफोर 18 ईयर ऑफ द एज, तो उनको वो दिया जा रहा है तो कौन चलाएगा उसको? वी आर जस्ट प्रमोटिंग। तो ये बात है कि यहाँ पे जो जी जी। डॉक्टर साहब रुकते हैं, एक छोटी जी ब्रेक वास्ते, उस तो बाद फिर ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ MP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ CMO ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ कुछ भी तल फिल प्रोग्राम के जरिए कोई हिस्सा पा सकते हैं, किसी के खाने बैठ जाए तो आपके आप भाग्यशाली तो उस परम पिता परमात्मा के शुक्रगुजार होंगे। रुकते एक छोटी जी ब्रेक ਲਈ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ।
ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮਓ ਸਾਹਿਬ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान एमपी शर्मा जी। डॉक्टर साहब स्वागत जी ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ। ब्रेक तो बाद हम बात कर रहे थे कि मैं एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ कि सख्ताई ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ हो गई, स्कूटी ਦੀ होगी, छोटे बच्चों की होगी, ये हो गया, ट्रक की होगी। जैसे आपने देखा था कि कोरोना में बहुत सख्ताई है कि बाहर नहीं निकल सकते। वैसे जब कोहरा पड़ा हुआ होता है, खास करके 2 महीने दिसंबर और जनवरी, अब तो फरवरी का मिड आ गया, तो अब तो कोहरा कम हो गया होगा वहाँ पे। और हम जिस एरिए की बात करें, या पूरे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वो मैदानी इलाका है, कोहरा बहुत सघन होता है और उसमें धुएं की परत भी होती है, सो विजिबिलिटी बहुत कम होती है। क्या उस वक्त जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे दूध की सप्लाई है, मेडिकल सेवाएं हैं, कुछ और सप्लाईज हैं, या पुलिस सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस हैं, वो उनको छोड़ के बाकी 12-1 बजे तक रोक लगाई जा सकती है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के रोक लगाई ही जानी चाहिए। कोरोना में देखा आपने, अगर हम फार वे बैक बात करें अपन कि सख्ती की बात करता हूं मैं, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट इमरजेंसी पीरियड जी जी, उसमें भी देखा कि ट्रेन टाइम पे थी, सब कुछ था। सख्ती वी इंडियंस, हम जो भारतीय लोग हैं ना, सख्ती जब होती है तो कुछ रूल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, अदरवाइज तो हम लॉ अबाइडिंग पर्सन नहीं है, लॉ वायलेटिंग पर्सन है। ये बिल्कुल हमारे एक मेंटलिटी है इस तरह की। सख्ती होनी चाहिए, सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बिल्कुल इस पे सख्ती होनी चाहिए, और मोबिलिटी पे रोक होनी चाहिए, अननेसेसरी मोबिलिटी पे। बिल्कुल मैं आई सपोर्ट योर व्यू, और इसके लिए सब लोगों को आगे बात भी करनी चाहिए। वो जैसे आपने अभी कहा कि कलेक्टर वगैरह से मिलके, यहाँ पे जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके, और हमारी जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर सकता है, हम लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो क्या कर सकते हैं, इन सब पे बात करने की जरूरत है सर। अदरवाइज मतलब मैं आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स। आई हैव सीन सो मेनी एक्सीडेंट्स, रोजाना देखते हैं ये लोग जा रहे हैं। तो ये आपकी जो बात है इसी तरीके से पहुंचे, और ये होगा पॉलिटिकल सिस्टम से। पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी सर, नहीं होने वाला कुछ। डॉक्टर साहब, आपने फिर वो विल पावर की बात की। अब एज ए नागरिक हमारी भी जिम्मेवारी, आप भी जागरूक करते रहो। एक और कारण है एक्सीडेंट्स का, रोड अच्छी हो गई हैं, लोग स्पीडिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है, वो है आवारा पशु। आप देख लीजिए, अगर उसमें कोई समाज सेवी संस्थाएं हैं, या एज ए नागरिक आप देख रहे हैं कि पशु घूम रहे हैं, उनको इकट्ठा करके जो है गौशाला में या कहीं दे आएँ, उससे जो रोड है वो क्लियर होगी। आपको लगता है कि ऐसा कुछ और हो जाना चाहिए? देखिए, आवारा पशुओं की जो मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, और जो स्कॉलर्स हैं, उनसे बात करी थी। उनकी समस्या का जो है ना हल, खासतौर में गौवंश की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया में, है बहुत बड़ा। मतलब उनकी वजह से आदमियों की जानें जा रही हैं, ह्यूमन बीइंग खत्म हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, मोर्बिडिटी हो रही है, अपने हाथ पैर उनके चले जाते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। एक तो उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा है, और दूसरा उनका कोई और दूसरा सिस्टम नहीं है। कितनी नंदीशालाएं खोली हुई हैं, गौशालाएं खोली हुई है, और लोग दूसरे जो हनुमानगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने पशु पालते हैं। वो दिन में दूध निकालते हैं और उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, फिर शाम को वापस वो आते हैं। वो भी एक एक्सीडेंट का कारण है। और आवारा पशु तो अब आप जयपुर जाए, कोला देखें तो वो तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है बिकॉज ऑफ दिस एनिमल्स। जी तो इसको डॉक्टर साहब, कुछ अमेंडमेंट जो है लॉ में हो सकते हैं कि ऐसा रोड पे ऊपर जो एक तो नशे वाला एक ही है, आवारा पशुओं वाला एक, छोटे बच्चों की है, ऐसी कुछ आवाज़ आप अपने हायर अप से कह करके या हायर ऑफिशियल से कह करके कुछ ऐसे अमेंडमेंट हो सकते हैं कि ये सब रुक जाए, तो काफ़ी लोगों की जान बच सकती है? सर रूल्स है, छोटा बच्चा स्कूटी नहीं चला सकता, आप पशु रोड पे नहीं छोड़ सकते, आप कुत्ता भी नहीं पाल सकते, जो पेट नहीं पाल सकते, ये सब है। पर इनको एनफोर्स करने वाले एजेंसीज में कमी है, या उनकी नंबर ऑफ दैट एजेंसीज लेस, और दूसरे हम लोग अवेयर नहीं है।
ये 2-3 चीजें हैं। अब आप कोला में जाते हैं लोग, मेरे साथी हैं लोग, वहाँ पे और अपने लोगों को ठंड से बचाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, इट्स ए गुड थिंग करिए, पर उनको रोड पे नहीं होना चाहिए ना ये सब सर, ये रोड से बाहर होना चाहिए, दूर होना चाहिए। एक और मैं आपको आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूं कि आदत है हमारी, मैं खास तौर पे जो गायों को पूजने वाले कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो अपने घर के बाहर 20 रुपए का हरा चारा डलवाते हैं, अपने घर के बाहर नहीं, कहीं रोड पे। और बहुत सारे लोग, मतलब हनुमानगढ़, सिर्फ हनुमानगढ़ सिटी की बात करें तो मोर देन 500 लोग ऐसे होंगे जो रोजाना 20 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का चारा रोड पे डलवाते हैं, और बहुत मेजर एक्सीडेंट का एक कारण होता है ये। तो ये खुद को भी समझने की है, और इसके लिए जो आपने कहा कि बार बार सब लोग सेमिनार्स करें, बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, पॉलिटिशियन से बात करें, लेकिन एज यू नो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स आते हैं सर। मैं उस पे कुछ भी बोलूं तो मुझे भी लगता है कि क्या, मतलब हम उसमें बोल सकते हैं कि नहीं, हाउ टू कंट्रोल दिस एनिमल्स। डॉक्टर साहब, इसमें एक कारण एक और भी जुड़ जाता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में धांधली चल रही है वहाँ पे। मैं किसी एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा जो होता है उस कैपेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका लाइसेंस बन जाता है और वो लेके गाड़ी लेके रोड पे निकल जाता है। कहीं ना कहीं ये भी कारण बड़ा बन रहा है आजकल। थोड़ा कोई 5% फर्क पड़ा होगा कि वो लाइसेंस नहीं दे, अदरवाइज जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने जो बने हुए हैं, लोग बैठे हैं, उस आप जस्ट गो देयर, गिव योर डॉक्यूमेंट्स एंड लाइसेंस बन के आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही वो किसी का बना सकते हो आप, अभी भी, मतलब टिल टुडे इतनी ज्यादा वो नहीं है कि आप उनको देखें या ड्राइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ और है नहीं। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि आप ड्राइविंग करना जानते नहीं है और आपका लाइसेंस बन गया है। तो इसके भी एड्रेस करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अब हम गोल्डन पीरियड की बात करते हैं। हमने 3-4 मिनट है ब्रेक से पहले, अगर हमने सब कारण तो कर लिया, आप भी कह रहे हैं कि हम गुजारिश करेंगे, हम बोलते हैं लोगों को ये मत करो वो मत करो, वो तो चलता रहेगा। कोशिश करते रहना, वर्कशॉप लगाते रहना, आपके पास लोग रोज़ आते हैं, उनको बताते रहना कि ये कारण है भाई, अपना बचाव हो सकता है तो ज़रूर करें। हम बात करते हैं कि गोल्डन पीरियड जब एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो फर्स्ट एड अवेलेबल नहीं है, एक बंदा ज़्यादा जख्मी एक कम है, वो गोल्डन पीरियड को कैसे आप संभाल सकते हैं? क्योंकि एम्बुलेंस आएगी या वो तो अभी बहुत टाइम लगता है वहाँ से आने का। देखिए, मैं हनुमानगढ़ की बात करूं, हनुमानगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे और न्यूरो सर्जन नहीं है। हनुमानगढ़ से अपन बाहर निकले तो रावसर में ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन ओनली बिल्डिंग इज देयर। उसके बाद में सरदार शहर जाएं, जो यहाँ से 150 किलोमीटर है, फिर रतनगढ़ है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के बीच में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो प्राइमरीली कोई एक्सीडेंट हो गया है। आप जिस गोल्डन पीरियड की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सिंपल बात कर रहा हूँ कि थ्रोट में इंजरी है, हेड इंजरी का पेशेंट है, खून आ रहा है, गले में खून भरा पड़ा है, अगर उसको सिर्फ उस ब्लड को सक्शन करके और उसको इंट्यूबेट कर दिया जाए तो पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। वो पीरियड जो है वो बहुत थोड़ा पीरियड होता है। जैसे आपने बात की टोल नाके पे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हो सकते हैं, बहुत जगह ट्रॉमा सेंटर्स बने हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से चले रावसर में है, नोरंगदेसर हॉस्पिटल है, उसके बाद में थोड़ी दूर आगे जाएंगे पल्लू है, ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे दे आर नॉट वेल इक्विप्ड। अगर इक्विपमेंट भी आ गए तो ट्रेन डॉक्टर्स नहीं है, और डॉक्टर्स का ट्रेंड बाहर का है ही नहीं, ना तो गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है, ना हम लोग ऐसे सोचते हैं। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि शहर में आए, और शहर में भी हनुमानगढ़ की बात करें, इतना बड़ा ये 20 लाख की पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ की, यहाँ पे एक सेंटर नहीं है ऐसा सरकारी या प्राइवेट की जहाँ पे हेड इंजरी को या अदर इंजरीज को, चेस्ट इंजरीज को डील किया जा सके। और जो गोल्डन पीरियड वाली बात है ना, मैंने पूरा, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, 25 to 30% डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड अगर जस्ट उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उनको रेफरल सेंटर में भेज दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। और जो टोल नाके वाले हैं, टोल सब कुछ कर रहे हैं, दे ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं है, और एम्बुलेंस है तो टाइम बहुत कम है पहुंचने, बहुत ज्यादा है पहुंचने का।
इंडिया में भी अगर गुजरात में ऐसा बोलते हैं कि 18 मिनट्स में एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन यहाँ तो एक घंटा 1.5 घंटा एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। 108 और 104 बहुत सारी सर्विसेज होने के बावजूद भी, और हॉस्पिटल दे आर जस्ट वेटिंग कि ठीक कुछ कर नहीं सकते, भी मरेगा। तो ये कैजुअल एटीट्यूड्स ऑफ आवर्स, आई मीन डॉक्टर्स वेरी डेंजरस। जान बच सकती है, वो नहीं बचती है। डॉक्टर साहब, बात तो फिर एज ए जागरूकता की आ गई है। हम हॉस्पिटल स्टाफ को ब्लेम कर लें, अगर वो है ही नहीं, जैसे आपने बताया कि यहाँ से हनुमानगढ़ से चल के आपका रावसर और उसके बाद सरदार शेर और उसके बाद रतनगढ़ और उसके बाद शायद सीकर होगा, ये लंबा चौड़ा एरिया है। और देखिए उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ एक, अगर यहाँ ऐसा रूरल एरिया है जहाँ नज़दीक कोई शहर नहीं है, तो सिर्फ 911 जो एक कॉल घुमानी होती है, एयरलिफ्ट कर लिया जाता बंदा। हालांकि एम्बुलेंस अगर दूर है तो उसको भी, अगर कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल इंजरी है, फिर भी अगर दूरी है तो इनका यहाँ रूल है कि एयरलिफ्ट कर लिया जाता है। हर हॉस्पिटल के पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं करीब करीब। वो अभी दूर की बात है इंडिया में। लेकिन उससे पहले हम ब्रेक से जाने से पहले मैं ज़रूर पूछूंगा कि जैसे पंजाब में है सर, मेरे को मालूम नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है, लेकिन रूल है कि हर टोल प्लाजा पे एक एम्बुलेंस और एक जो है डॉक्टर और एक दो उसके साथी होने चाहिए। मेरे को नहीं मालूम कि वहाँ है, वो पूरा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब टोल प्लाजा तो हमारी तरफ भी बहुत है, आप चले जाइए जयपुर वाली सड़क पे कितने हैं, जयपुर अजमेर के बीच में 3-4 है। क्या उन पे ये सब कुछ है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से? यहाँ से रतनगढ़ तक जो टोल प्लाजा है, मेगा हाईवे है। रतनगढ़ से आगे जयपुर की तरफ तो नेशनल हाईवे है। यहाँ से रतनगढ़ 200 किलोमीटर मेगा हाईवे है, उस पे एक एम्बुलेंस कोल्ला में है और एक दूसरी रतनगढ़ के पास में है। 2 एम्बुलेंस है, और जब भी कॉल होती है तो एम्बुलेंस गई हुई है कहीं, ज्यादातर टाइम दूसरी गई है। अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा इशू है। डॉक्टर्स की तो बात छोड़ दीजिए आप, डॉक्टर्स और नर्सिंग ट्रेनिंग स्टाफ की तो बात नहीं। एक एम्बुलेंस है, उसमें ड्राइवर है, इक्विपमेंट्स इसमें है तो यूज करना नहीं है, लेकिन है नहीं उसमें इक्विपमेंट्स। मैंने देखा है, सेम विद माय ओन आईज, कि टोल प्लाजा की जो एम्बुलेंस है वो है, एक होनी चाहिए, एक एम्बुलेंस है, दैट्स ऑल। जी डॉक्टर साहब, रुकते हैं छोटी जी ब्रेक ਲਈ। लास्ट ब्रेक है सर। दर्शकों, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ MP ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ CMO ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਗਰਿਕ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ब्रेक ਲਈ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ से। सर, बातें बहुत हो गई, अब बताओ इलाज आप अपने हलके में और अपने स्टाफ में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इसका इलाज और जागरूकता के लिए क्या क्या कर रहे हैं? सर, मैं उससे पहले एक आपको 30 सेकंड्स लेना चाहूंगा। एक्सीडेंट्स कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं? जी जी। हाईवेज पे बात करें तो जैसे ये जिस ईयर का है कि 1,22,204 और डेथ है 53,000। स्टेट हाईवे पे 96,000 एक्सीडेंट एंड 39,000 डेथ्स। अदर रोड जिनकी आप बात कर रहे थे, रूरल एरियाज की, उस वो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स वहां हो रहे हैं। 1,84,461 एक्सीडेंट्स हुए थे और डेथ है 63,000। तो ये जो आपने एड्रेस करी जिस चीज को, हाईवे पे फिर भी मोबिलिटी कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगी, कुछ एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाएगी। जो अदर रोड्स की बात कर रहे हैं अपने, जो लिंक रोड्स हैं, उस पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। डेथ सबसे ज्यादा वही हो रही है इंडिया में। अब आपने पूछा कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आई एम ए सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, हम लोग खुद सेमिनार कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट जो कर रहे हैं उनमें हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हम लोग प्रशासन से मिलके, हनुमानगढ़ में जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, हेलो, वो बहुत अच्छे आदमी है, वो अच्छे काम कर रहे हैं। वो रोज कहीं न कहीं कोई नुक्कड़ नाटक, कोई और लोगों को सख्ती से भी, और कल भी यहाँ पे किसी भामाशाह ने 500 वो हेलमेट डोनेट किए। प्रोग्राम था, उसमें SP कलेक्टर थे, उस डॉक्टर्स भी थे। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारी रूटीन की काम को छोड़ के रोज हम काम कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, जिसमें हम प्राइवेट हॉस्पिटल और बात, वो तो हमारी ड्यूटी है। अदर देन दिस ह्यूमैनिटी के लिए भी हम कर सकते हैं ऐसा। और ये सब मिलजुल के करना पड़ेगा कि नशा और एक्सीडेंट्स
साथ में भी क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे कैसे आप कर सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो। आप लोगों को अगर वायलेट करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब मिलजुल के करें तो है। आज भी हम हमारा टाइम लिया हुआ है एसपी यहाँ मानगढ़ अजय सिंह जी से कि हम इस पे बात करने वाले हैं कि भाई हम इस तरह के कुछ सेमिनार्स लगाएं और आप भी शक्ति थोड़ी बढ़ाइए। ये बात हम करने वाले हैं। हम लोग सब लोग मिलके करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। बात सर आपने आपने अभी की है मिलजुल के जागरूकता। मैं कहीं जा रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी स्टेट या सिटी का, तो गाड़ी से, इंडिया की बात है, और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। एक साइकिल पे बुजुर्ग जा रहे थे, मालूम नहीं उनको चक्कर आया या क्या कैसे हुआ, कम से कम आधा किलोमीटर आगे थे तो वो गिर पड़े। उनका जो सर है वो थोड़ा सा यहाँ से ब्लीडिंग कर रहा था। तो मैंने देखा लोग जो बच्चे स्कूल वाले कोई वीडियो बना रहा था, कोई कुछ, किसी ने उनको उठाया नहीं, किसी ने उनको पानी तक नहीं दिया। बात यह आ जाती है कि हमारी इंसानियत इस कदर तक उस वक्त, या तो हम ये सोचते हैं कि हमारा क्या है, या हम ये सोचते हैं कि इंटरटेनमेंट हो रहा है, या हम ये सोचते हैं कि जो पुलिस का चक्कर है वो हमें ना पड़े। पर सबसे पहले जो इंसानियत हमें ये कहती है कि उसको पानी दो, उसको देखो अगर कुछ हो सकता है तो। एक सज्जन थे मोटरसाइकिल पे, वो हमसे पहले पहुंच गए, उन्होंने उनको उठाया, उनके पास पानी था, बोतल थी, उनको पानी दिया, उनको किनारे पे किया, क्योंकि वो रोड पर पड़े थे, कुछ हैवी व्हीकल आता था और नुकसान हो सकता था। बाद में धीरे धीरे हम भी खड़े हुए, हमने भी पानी दिया, वो बढ़िया हो गए। उनको चक्कर ही आया था, बिल्कुल थोड़ी सी ब्लीडिंग थी, वो बोले ठीक है। फिर उनको घर का पूछा कहाँ है ये, उनसे मोबाइल फ़ोन लिया, सब सेटल्ड हो गया सब। 10 मिनट भी नहीं लगे हमारे को। क्या ये सोच के लिए वर्कशॉप की ज़रूरत है, बच्चों के लिए या बुजुर्गों, किसी भी बंदे के लिए जो रोड पे चलता है? बिल्कुल जरूरत है सर। ये आपने, ये कितनी बार देखते हैं हम, मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, उसकी फिल्म बनाएंगे, कोई लाइव फेसबुक पे हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी बचाने वाला जो एक्टिविटी है ना, वो बहुत कम देखने को मिलती है। और ये शुरू घर से हो सकता है, और खासतौर पर स्कूलों में ये बात करी जा सकती है। स्कूलों में ये जो है ना कैंप्स, स्कूलों में हम लोग कुछ कैंप लगा रहे हैं। हमारे डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर रवि है, वो आई चेकअप के लिए, तो उसमें आपने एक जो बात करी उसको भी मैं ऐड करूंगा। उनके साथ जाके स्कूलों में ये हम जरूर बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे कि भी ये इस तरह की चीज, क्योंकि जब बचपन से सीखेंगे तो वो फिर जिंदगी भर उनकी वो रहेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम उनको सेंसिटाइज करें। और उस पीरियड में जो आप गोल्डन पीरियड की बात कर रहे हो, 1 आवर की बात कर रहे हो, तो उसमें अगर उसको ऐड मिलती है तो ये चीज बहुत जरूरी है। ये भी हम कर रहे हैं, यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप एज ए ऑफिसर एक आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, वो हो, कोई बोल कर नहीं करता, कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसमें उसके बाद में क्या है कि चलो किसी का शरीर का कोई अंग है, पाँव है, हाथ है, कुछ भी नुकसान हो जाता है। जो अमीर आदमी है वो तो अपने बच्चे को या अपने बंदे को कहीं भी ले जाएगा, जो गरीब आदमी है वो लोकल हॉस्पिटल में ले जाएगा। वहाँ पर मालूम नहीं कि हमारे राजस्थान में या इंडिया में कोई ऐसी एक्सीडेंट इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन 75% जो आंकड़े आ रहे हैं कि वो बेचारे की वो वैसे ही रहता है, ब्लीडिंग बंद कर दी है, उसके बाद उसके पास पैसे नहीं होते कि वो प्लास्टिक की या लकड़ की जो भी है, या फिर वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कहीं जा सके। कुछ ऐसा आप आवाज़ उठाएंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बेचारे की अगर टांग चली गई है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो ताकि वो घर जा सके, अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सके। हाँ जी, अभी राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां, वो कभी बाद में बात करेंगे। उसमें सभी लोग 850 रुपया दे और पूरी फैमिली आपकी इंश्योर होगी। लेकिन उसमें भी कुछ एक चीजें एड्रेस करी गई है, कुछ एक नहीं करी गई है, कुछ एक पैकेज इतने कम है कि सर्वाइव करना प्राइवेट हॉस्पिटल से मुश्किल है। तो ये सब चीजें हैं अभी। और जैसे आपने बताया कि कोई उठा के पुलिस को ले जाता है हॉस्पिटल में, तो पुलिस भी कुछ करेगी। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट इंडिया ने भी किया है कि आप उसको नहीं पूछ सकते, बस वो लेके आए तो आप बता दो कि कहाँ से लेके आए, क्या है, तो वो उसको पुलिस ज्यादा पूछताछ करेगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। लेकिन ये जो कुछ संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जिस किसी का लिम्ब चला गया, पैर चला गया, हाथ चला गया, तो आर्टिफिशियल वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आती है बात ट्रीटमेंट की।
तो उसके लिए कुछ अ, संस्थाओं को आगे आगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सब चीजें करेंगे तो उनको कुछ ऐड मिल सकती है, क्योंकि एक लाइवलीहुड कमाने वाला है घर पे, उसका पैर चला गया तो उसका परिवार बर्बाद है पूरा। तो इसको भी, ये बहुत सारी चीजें हैं। और मैं बीच में ही आपको एक बात बताना चाहूंगा गुरलाल जी सर, कि मैं आपसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। आपके पास जो भी बात करते हैं ना, मैं जरूर, हमारे आईएमए का मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोग बात करते हैं और उस पर जरूर डिस्कस भी करते हैं कि हमें थोड़े बहुत हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आके और हमें कुछ इस पे करना चाहिए। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। आप देखो, आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, जो बड़े बिजनेस भी करते हैं, जो घर से निकलते हैं ना, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। वरना खाना तो 2 वक्त का कहीं भी मिल जाता है, आप गरीब हो अमीर हो, काम करना, काम करने के बाद आपको खाना मिल जाएगा। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स सोच के, क्योंकि हमारी, आप तो मेरे से बड़े हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मैंने ज़िंदगी में वो कुछ देखा है कि अब मैं 40-45 के ऊपर के जब हो जाता हूँ कि हम अपनी बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ दे, जो समाज ने हमें इतना कुछ दिया, हम कुछ कर सकें ताकि हम समाज को वापस दे सकें। हमारी तरफ से कोशिश रहती है। सर 1 मिनट है, अगर आप अपने सुनने वालों, देखने वालों को कोई संदेश देना चाहें। बस मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को शुरू से ये सिखाएं कि किस तरह, पहले तो ये कि क्या क्या उनको स्कूटी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक, गाड़ी नहीं, इस एज तक नहीं। दूसरा, लोगों को फॉलो करें। तीसरा, नशे से बचें। नशे सर से ये घर से जरूरी है सिखाना। घर पे ही, मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे ज्यादा जो है नशा दारू का है, शराब का है। और घर पे जब सब आप बच्चों के सामने कर रहे हैं ना, तो वो उसको लगता है दिस इज नॉर्मल। और दूसरा, जो मैंने पहले भी बात करी है, हेलो, चिट्टा वगैरह की यहाँ पे इतना कॉमन है सर, इतनी इजी अवेलेबिलिटी है एवरीवेयर, हॉस्पिटल के पास में, छोटे छोटे ढाबों पर, दुकानों पर। और हनुमानगढ़ में एक और नया ट्रेंड चला है सर, कि धमकी देने वाला, ये एक्सटॉर्शन के लिए। और वो जो, अगर आप परमिट करें तो 30 सेकंड में मैं बोलूं, वो बच्चे जो है वो नशेड़ी हैं और 15,000 रुपए, 10,000 रुपए लेके किसी भी गोली चला सकते हैं। जो कोई चला रहा है, किसी के लॉरेंस के नाम से चला रहा है, कोई गोल्डे ब्रांड के नाम से चला रहा है, अब पता नहीं उन्होंने उनके वो है गुर्गे नहीं है, लेकिन ये नशा, इसका मेन जो रूट कोज जो है, ये चिट्टा और ये नशा है उसके लिए। तो इसके लिए बहुत कुछ हमें परिवार से ही बच्चों को सिखाना है, और स्कूल में खासतौर पर इस तरह के सेमिनार्स और सब करें, बात करें जी। हम चाहेंगे सर आप आवाज़ उठाते रहें, धार्मिक संस्थाएं भी उठाते रहें, अपने लेवल पे आप, आपके हायर अप्स भी करते रहें। कोशिश करेंगे किसी और मुद्दे पर को लेकर आपको रूबरू होंगे कि कुछ दिनों बाद। आज आपने टाइम निकाला, हम आपके बहुत मशगूल हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, इस सन डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा यानी MP शर्मा, CMO डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान। रोड एक्सीडेंट्स एक बड़े जानलेवा साबित हो रहे हैं हर जगह ही, खास करके जे पिछले 1-2 महीने चात मारीए तो धुंध दा करके असी कोशिश की की कारण है तो क्यों लोग बाहर निकलते, कि जो भी तिलफुल असी समाज लिए पा सकते असी पाने आ। तुहाडी टिप्पणियों का इंतजार रहूगा। होप तुहानू प्रोग्राम चंगा लग्या। मैनू गुरलाल नूं दिओ इजाजत। मेरे वालों तुहानू सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।